Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are again here with the new devotions, with new enthusiasm. So we are going to start the chapter number 3 of first year biology, which is enzymes. Before going in the detail of today's topic, I must share the objectives of today's topic, which is the characteristics of enzymes has been asked in your board exam, and it is also the exercise long question number 1, and from this topic you are also going to attempt the MCQ number 3 of your exercise. So before going to start this topic, that is the enzyme, we must know that what are enzymes, why are they needed in our body, and what the specific function do they perform in our body. So first comes the nomenclature, as nomenclature is the system by which we name different things or different compounds. So enzyme is a biological catalyst. This biological catalyst is derived from two words, that is en mean in, and zyme. Zyme shows the origin, that is the yeast. So from this nomenclature we can conclude that enzymes are obtained from the yeast, because they were present in the yeast, they were extracted from the yeast. So enzymes are present inside the yeast at that time, but now we can say that enzyme is the part of every body, every cell, to perform the different biological reactions. So then comes the definition. These are the biomolecules. Why are they known as the biomolecules? Because they are protein in nature. So if they are protein in nature, then protein is a biomolecule which is made up of different types of amino acids which catalyze. Catalyze means enhances, which catalyze the reaction. Reaction means any metabolic activity. So any metabolic activity, as you already know that the metabolism is the sum of all the reactions which occur inside our body. So if we talk about the metabolic activities, then there are different types of metabolic activities, like the production of saliva, like the digestion in the body, and so many processes in a step goes under this metabolic activity. Being altered in a reaction, यानी वो metabolic एक्टिविटी जिसके साथ हम एंजाइम्स को यूज करते हैं और वो एक्टिविटी ऑल्टर्ड हो जाता है, रिएक्शन को इन्हांस कर देता है, लेकिन एंजाइम जो है वो बेसिकली खुद चेंज नहीं होता इस एक्टिविटी में. ठीक है, सो वी कैन से बेटा दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स दैट कैटलाइज द रिएक्शन, दैट दे कैटलाइज द रिएक्शन बट विदाउट बीइंग अल्टर्ड इन द रिएक्शन, व्हिच मींस कि ये तो रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं लेकिन खुद रिएक्शन में चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, या इनके स्ट्रक्चर में या इनके कन्फर्गेशन में, कन्फर्मेशन में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम इसे कहते हैं कि दे डू नॉट अल्टर्ड इन द रिएक्शन. Then comes the history. So first of all, in 1700s to 1800, it was known that in the stomach meat is digested. But how it is digested, what is the process involved in its digestion, that was not known. And then the conversion of starch into different sugars in plants. ठीक है, ये तो उस टाइम पे पता था कि स्टमक के अंदर मीट की डाइजेशन होती है, लेकिन कैसे होती है दैट वाज नॉट नोन. और उसके बाद जो प्लांट्स हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं, बट उसको स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं फॉर स्टोरेज. लेकिन जब स्टार्च की दोबारा से रिक्वायरमेंट होती है कि वो शुगर में कन्वर्ट हो, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो कैसे डाइजेस्ट होती है, तो उसको देखने के लिए मैकेनिज्म क्या था दैट वाज नॉट नोन, बट उसके पीछे कुछ इन्वॉल्व है, उसके बारे में उन साइंटिस्ट को विच वर वर्किंग इन दैट एरा, उनको ये कुछ कंफर्म था कि यस देयर इज एनी कैटलिस्ट विच इज इन्वॉल्व बिहाइंड इट. बट इन 1850 व्हेन द लुईस पास्चर ही वाज वर्किंग विद द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड जब उन्होंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की यानी यीस्ट को यूज करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन
रिएक्शन होती है, और ये बेटा आपको पता होगा और शायद आप लोगों ने 9th क्लास में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा भी होगा कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो उस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, विच अकर्स इन ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ सेल बट पर्टिकुलरली इन द प्रोकैरियोट्स, और यीस्ट में, एज यीस्ट इज अ यूकैरियोट, फंजाई है बेटा ये और यूकैरियोट है, ठीक है। तो ये किस तरह से जो है वो एक्टिविटी करता था इसके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो यीस्ट को अपना फूड या जो भी उसका कंटेंट था उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। वो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करता है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ठीक है। जब ग्लूकोज ब्रेक होता है इनसाइड द साइटोसोल तो इट मेक्स द पायरोविक एसिड, एंड दिस पायरोविक एसिड इज अ 3C molecule. It is a 3C molecule, means it contains 3 carbon. लेकिन still अगर आप देखें तो pyruvic acid is not completely broken down from the glucose. It needs more reaction to be broken down or to be digested. So बेटा pyruvic acid की जो further digestion होती है inside the yeast, that is the alcoholic fermentation, in which the pyruvic acid is converted into ethanol, C2H5OH and कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट वाज द रिएक्शन जो कि यीस्ट में होता है, जिससे पायरोविक एसिड जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और उस टाइम पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाज वेरी कॉमन, क्योंकि आपको शायद पता हो कि बायोटेक्नोलॉजी का भी बैकग्राउंड इसी से जो है वो इमर्ज हुआ था। तो पायरोविक एसिड जो है ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, लेकिन कैसे बना रहा है, क्योंकि ऐसे तो अगर हम देखें तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सो ये फौरन किस तरह अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। उसके लिए जब लुईस पास्चर ने इसके फर्मेंट को या इसके जो भी कंपोनेंट थे उसको स्टडी किया, तो उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर कोई एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको फर्मेंट्स कहा जाता है, और ये फर्मेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं पायरोविक एसिड को ब्रेक करने में या मेटाबोलाइज करने में या कैटाबोलाइज करने में इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो यहाँ से हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि लुईस पास्चर ने जब इसका एक्सट्रैक्ट स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है दैट वाज वेरी कॉमन एट दैट टाइम, तो ये जो है वो फर्मेंट्स की मदद से होती है, ठीक है। देन हमारे पास 1897 का एरा आता है, और उसमें एडवर्ड बुचर हैं जिन्होंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट एक्सट्रैक्ट को स्टडी किया, यानी इसी फर्मेंट के प्रोसेस को स्टडी किया, और उन्होंने इस फर्मेंट की बजाय उसको नाम दिया जाइमेज का, ठीक है। अब जाइमेज का मतलब क्या होता है, जाइमेज यीस्ट के लिए यूज होता है। सो ओरिजिनली जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जाइम, ठीक है, सो जाइमेज उसको उस टाइम पे नाम दिया गया। तो जाइमेज का मतलब है कि ये यीस्ट के अंदर प्रेजेंट है और वहां से ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट इनकी एक कंट्रीब्यूशन थी कि इनकी वजह से हमें डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में पता चला था। सो 1907 में ही वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द आप कह सकते हो कि इन द फाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स। देन कोहने थे, उन्होंने एंजाइम्स को देखा कि एंजाइम्स जो हैं वो ना सिर्फ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बल्कि ये बहुत सारे रिएक्शंस को भी मेडिएट करते हैं। मेडिएट करने का मतलब होता है कि या तो उनको स्टार्ट करते हैं या फिर उनको इंक्रीज करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस करते हैं। देन 1926 में फाइनली हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि यूरिएज एक एंजाइम है विच इज़ प्रेजेंट और वर्किंग इनसाइड द लिवर। तो आइसोलेशन और उसको आइसोलेट भी किया गया लिवर सेल से, एंड देन उसकी क्रिस्टलाइजेशन भी देखी गई कि ये क्रिस्टल फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन बेटा हमारे पास आता है इसका ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव था कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। सो द प्रॉपर्टीज इज आल्सो नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं एंजाइम के अंदर जो कि एंजाइम को अपने फंक्शन करने में या किसी भी फंक्शन को हेल्प आउट करने में हेल्प करती हैं। सो फर्स्ट इज द इट्स नेचर। नेचर में देखें बेटा तो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर,
प्रोटीनेशियस इन नेचर का क्या मतलब है कि दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन. सो दीज आर globular protein. What do we mean by globular protein? So globular mean globe like. Globe like means spherical in shape. ठीक है, so these are spherical in shape. So we can say, as we already have discussed in chapter number 2 in the topic of protein, that there are different organization or the structural conformation of proteins, which were primary protein, then secondary protein, then tertiary, and then quaternary protein. So if we talk about the structure of enzymes or the nature of the globular protein, then it comes that they can be the tertiary protein, means they have complex 3D structure, or they are globular protein which shows its quaternary structure. ठीक है, सो दे कैन बी क्वाटनरी एंड दे कैन बी 3D कॉम्प्लेक्स टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जब राइबोसोम्स के ऊपर किसी भी एंजाइम के पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है तो वो टर्शियरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है और अपने स्ट्रक्चर को अरेंज करता है एक ग्लोब की फॉर्म में. उस ग्लोब को हम नाम देते हैं एंजाइम्स का. ठीक है, सो ऑल द एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट द राइबोजाइम. Here is an exception, which is the ribozyme. Ribozyme, as its name indicate, ribo mean ribosomes and zyme mean enzyme. It means that there are some enzymes inside the ribosomes, as we have discussed in the topic of ribosomes, that ribosome has to translate the amino acid or to translate the message of the messenger RNA in the form of amino acids. So बेटा वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि we have two sub units of enzyme, ribosomes, smaller unit and larger unit. The basic purpose of the smallest unit is to bind with the messenger RNA. So इसके साथ तो messenger RNA bind हो जाता है. But what is the purpose of this larger unit? It has a P site, and P site mean peptidyl site. So what do we mean by this peptidyl site? It means that it has to catalyze the formation of peptide bond. It makes peptide bond. So if it makes peptide bond, then it needs substrate. तो वो कौन सा substrate है? These are amino acids. अब देखिए अमाइनो एसिड का लिंकेज होता है हमारे पास, इस पेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है. तो ये जो बॉन्ड आपके पास बनता है बिटवीन द अमाइनो एसिड, दिस इज डन बाय द राइबोजाइम, और आप इसको कह सकते हो पेप्टिडाइल एंजाइम. तो ये जो पेप्टिडाइल एंजाइम है आपके पास, पेप्टिडाइल एंजाइम, इसका फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड व्हिच इज द लिंकेज बिटवीन द अमाइनो एसिड. सो इफ दीज आर द अमाइनो एसिड, देन दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, एंड दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इनसाइड द राइबोसोम इन द लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑन द P site, which is the peptidyl site. So it means that there are some type of enzymes which are present here which catalyze the reaction. ठीक है, सो हमारे पास जो राइबोसोम्स के अंदर एंजाइम्स हैं, इट इज द राइबोसोमल एंजाइम which is the ribozyme, and ribozyme is made up of ribosomal rRNA. ठीक है, rRNA से बना हुआ है या फिर राइबोसोमल RNA से बना हुआ है. ठीक है बेटा, सो हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन प्रोटीन, बट द ओनली एंजाइम व्हिच इज द नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर, दिस इज द राइबोजाइम, एंड राइबोजाइम इज प्रेजेंट इन द लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम्स टू मेक द बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड्स. Then its second property beta, that is the acceleration of reaction. It accelerates the reaction. It accelerate the reaction का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो substrates हैं A and B, तो A एंड B जब रिएक्ट करेंगे तो ये AB बनाएंगे. ठीक है, सो दिस इज अ सबस्ट्रेट एंड दिस इज अ प्रोडक्ट. लेकिन A और B को रिएक्ट करवाने के लिए, ठीक है ना, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है, यानी आप ये कहें कि हमारे पास A और B ये दो सबस्ट्रेट हैं, और ये दो सबस्ट्रेट अगर रिएक्ट करते हैं तो AB प्रोडक्ट बनता है. लेकिन हमें ये पता है कि जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हमें एंजाइम
एंजाइम की ज़रूरत होती है, और वो एंजाइम इसलिए चाहिए होता है कि वो कंडेंसेशन रिएक्शन को इन्हेंस कर सके, ठीक है। तो ए बी में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, सो डेफिनेटली एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। सो इन ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी उसको ना रिक्वायर्ड हो, क्योंकि जितना स्लोली ये रिएक्ट करेंगे उतना ज़्यादा इनको एनर्जी चाहिए होगी। सो इस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, एंजाइम की, ताकि एंजाइम जो है वो उसकी एनर्जी को डिक्रीज करे और रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस करे, ठीक है। देन कम्स आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी, ये जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं कि अगर एक सिंगल एंजाइम भी आपके पास इस ए बी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ए बी प्रोडक्ट बन जाएगा और आपको वापस जो एंजाइम है वो अपनी उसी कंडीशन में वापस मिल जाएगा, ठीक है बेटा। देन कम्स देयर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब होता है कि इन्होंने अपना रेट ऑफ रिएक्शन या अपना जो रिएक्शन है जब वो परफॉर्म करेंगे तो रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि हर केमिकल रिएक्शन हर एंजाइम से नहीं होता है, ठीक है। जैसे बच्चे अगर हम ये कहें कि हमें जो है वो ए और बी को रिएक्ट करवाना है और ए बी प्रोडक्ट बनाना है, तो डेफिनेटली ए और बी कोई सबस्ट्रेट है, इन सबस्ट्रेट को रिएक्ट करवाना है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि आपको ए बी जो है वो 2 एमाइनो एसिड्स हैं, कोई से भी 2 एमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, इन 2 एमाइनो एसिड्स को आपने रिएक्ट करवाना है एंड फॉर्मेशन ऑफ मोनोपेप्टाइड करनी है, तो व्हेन वी हैव टू मेक द मोनोपेप्टाइड, तो उसको बनाने के लिए आपको एंजाइम की ज़रूरत है। वो एंजाइम अब आप लाइपेज नहीं यूज़ कर सकते, वो एंजाइम प्रोटीएज नहीं हो सकता, बल्कि वो क्या होगा, वो एंजाइम होगा जो इन 2 अमाइनो एसिड को आपस में रिएक्ट करवाए, और ये एंजाइम आपके पास प्रेजेंट होता है पेप्टिडाइल साइट ऑफ राइबोसोम के ऊपर, जिसको आप पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कहते हैं, ठीक है। सो दे आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, ठीक है बेटा। और ये स्पेसिफिसिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है। दे कैन बी द ग्रुप स्पेसिफिक एंड दे कैन बी द सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। अब ग्रुप स्पेसिफिक और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है, तो ग्रुप स्पेसिफिक का ये मतलब है, ग्रुप स्पेसिफिक का ये मतलब है कि जैसे आपके पास प्रोटीएज है, तो प्रोटीएज में आपको ये नहीं पता कि उसने कौन से प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। सो प्रोटीएज वर्क ऑन ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जबकि सबस्ट्रेट में अगर मैं आपसे कहती हूँ डेक्सट्रेज है, तो डेक्सट्रेज जो है इट विल ओनली वर्क ऑन द डेक्सट्रोज। सो डेक्सट्रेज जो है वो हो गया सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, इट नीड्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। और ग्रुप स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि उसी तरह के जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं जो एक ग्रुप में लाया करते हैं वो इस ग्रुप स्पेसिफिक एंजाइम के अंदर फंक्शनल हो सकते हैं, या उनका एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है या जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो कैटालाइज हो सकता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड मस्ट वॉच द पार्ट बी।